Now, today we will do the method of point estimation. So, in the last sections, we have discussed various properties of good estimator for a population parameter. Now, these are the some important methods for obtaining. वहां से ये पता चला कि ये करेक्टरिस्टिक है गुड एस्टिमेटर क्या, यहाँ से हमें ये पता चलेगा कि एक एस्टिमेटर को पैरामीटर के लिए कैसे ऑब्टेन करना है. सो हियर वी विल डिस्कस द मेथड ऑफ एमएलई, मेथड ऑफ मिनिमम वेरिएंस. इट्स नॉट मिनिमम, इट्स मिनिमम वेरिएंस. then method of movement. So first three we will discuss. The first is a maximum likelihood estimator. देखो दो चीजें हैं. likelihood function आप पता कर चुके हैं क्या है, ठीक है जी. जब हम लाइक्लीहुड फंक्शन को मैक्सिमाइज कर देते हैं तो वो बन जाता है मैक्सिमम लाइक्लीहुड फंक्शन एस्टिमेटेड. और मैक्सिमाइज करने का क्या तरीका है? व्हाट इज द मेथड टू मैक्सिमाइज अ फंक्शन? वी विल टेक द डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0, देन यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा कैप. ठीक है, आप एक थीटा कैप की वैल्यू जिससे भी आप इंटीग्रेट कर रहे हैं, डेरिवेटिव ले रहे हैं, म्यू से ले रहे हैं, सिग्मा स्क्वायर से ले रहे हैं, तो जो फाइनल आपका आंसर आएगा जब आप इक्वल टू 0 डेरिवेटिव कर देंगे, जो आंसर आएगा उसको म्यू कैप सिग्मा स्क्वायर कैप इस फॉर्म में लिखेंगे. ठीक है. So and then you will check the second derivative. If second derivative is less than 0, then we will obtain the maximum likelihood. So let's come to the definition. ML is a point estimator and is the most general method of estimation proposed by R.F. Fisher. According to the principle of MLE, we should select that estimator which maximizes the likelihood function. हमें वो estimator select करना है जो likelihood function को क्या करता है, maximize करता है, which maximizes the likelihood function. Right? So for what is the methodology? To explain the method, consider a population with density function fx theta. Fx theta means it has a parameter theta. Theta is a population parameter. From this population, we will take a sample of size n with the sample values x1, x2, so on up to xn. These sample observations are independent and random. Then the likelihood function, you know how to find the likelihood function. This is the joint probability function. This is the joint probability function of sample observation. That is, this is equal to f of x1 comma theta into f of x2 theta, so on up to f of xn theta, right? For finding the MLE for the population parameter theta, we have to maximize the likelihood function, and the likelihood function will be maximum if the following two conditions are satisfied. Derivative is equal to 0 and the second derivative is less than 0. So as a likelihood function is a product of n factors in general, so therefore differentiation will be easy if we take the logarithm. So जब भी हमने derivative लेना है, पहले log ले लीजिए, log लेने के बाद derivative करना है, उससे क्या हो जाएगा, जो सारी जो calculation है, that will become easy. So you will take the log, you will take the derivative, that is equal to 0, then you will take the second derivative, right? So further in case population has, देखो ये तो सिर्फ एक पैरामीटर पड़ा है तो उसके लिए ये केस है. अगर हमारे पास एक से ज्यादा पैरामीटर्स पड़े हैं, then to find family we take partial derivatives with respect to each parameter. अगर सपोज करो हमारे पास दो पैरामीटर हैं, ठीक है, तो हम अगर एक पैरामीटर है तो हम विद सिंपल जो है वो पार्शियल नहीं लेंगे, सिंपल होल डेरिवेटिव जो है वो ले लिया जाएगा. अगर हमारे पास एक से ज्यादा पैरामीटर्स हैं, then we will make the partial derivatives with respect to each parameter, then equating it equal to 0 and resulting equation simultaneously we get MLEs for a given parameter. Suppose we have the likelihood function with the parameters theta 1, theta 2, theta k, that is pi I running from 1 to 1. बस theta की जगह सारे parameters लगा दिए. For the MLE derivative with respect to curly by curly theta 1, curly by curly theta 2, curly by curly theta, partial लेना है हमने, right? Now these are the properties. What are the properties of maximum likelihood estimators? A maximum likelihood estimator is not necessarily unique. A maximum likelihood estimator is not necessarily unbiased. इसका मतलब जो MLE है जरूरी नहीं कि वो यूनिक हो. एक पॉपुलेशन पैरामीटर के लिए दो MLE भी आ सकते हैं.
MLE जरूरी नहीं कि अनबायस्ड। अगर सपोज करो थीटा कैप जो है वो MLE का काम कर रहा है, तो जरूरी नहीं ई थीटा कैप जो है वो थीटा के इक्वल हो, इज नॉट इक्वल टू थीटा। MLE may not be consistent, इसका मतलब एक्सपेक्टेड ऑफ, इसका मतलब क्या है कि जो थीटा कैप है जरूरी नहीं कि वो पैरामीटर को टेंड करे, दैट इज थीटा कैप इज नॉट अ कंसिस्टेंट एस्टिमेटर। MLE may not be uniformly minimum variance biased estimator, कि जरूरी नहीं कि थीटा कैप जो है वो मिनिमम वेरिएंस बायस्ड एस्टिमेटर की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई। If a sufficient statistics exists, then it is a function of MLE. If a sufficient statistics exists, then it is a function of MLE. If a minimum variance bound estimator exists, a maximum likelihood estimator provides it. So these are some of the properties, right? And then we have, if T is a sufficient statistics for a parameter theta and is a unique MLE theta cap of theta exists, theta cap is a function of T. Also, if MLE exists, then MLE theta can be found, which is a function of T. वही कह रहे हैं कि अगर T एक sufficient statistics है parameter theta का, and a unique MLE theta cap of theta exists, then theta cap is a function of T. T मतलब जो statistic चल रहा है उसका function है. The first second order derivatives exist on continuous function of theta in the range. देखो ये exist कर रहे हैं तभी हम MLE के ऊपर ये condition hold कर रहे हैं, ठीक है? So then the third derivative also exists with respect to this sum of the conditions. Next is Cramer's-Rao theorem. Statement with probability approaching unity as n tends to infinity. The likelihood equation curly by curly theta log of L is equal to 0 has a solution which converges in probability to the true value of theta naught. इसका मतलब ये है कि ये जब हम इसको जीरो करते हैं और जीरो करके जो थीटा की वैल्यू आती है दैट इज थीटा कैप, वो किसको कन्वर्ज करती है? वो थीटा नॉट को कन्वर्ज करती है. इट इम्प्लाइज द MLEs आर consistent whenever n tends to infinity. Next is Hazood-Bazai's theorem. Statement. This is a statement. Any consistent solution of the likelihood equation provides a maximum of the likelihood with probability tending to unity as the sample size tends to infinity. बेटा almost दोनों का मतलब same है कि जब हम जो इक्वेशन है ये मैक्सिमम लाइक्लीहुड इक्वेशन आपके पास आ रही है, तो जो थीटा कैप आ रहा है, जो सॉल्यूशन फाइंड आउट हम कर रहे हैं, द सॉल्यूशन द एनी कंसिस्टेंट सॉल्यूशन ऑफ द लाइक्लीहुड इक्वेशन, इसका नाम क्या है? लाइक्लीहुड इक्वेशन. Equation provides a maximum of the likelihood with probability tending to unity as the sample size tends to infinity. इसका मतलब क्या है कि इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, ठीक है, इसकी जो प्रोबेबिलिटी है दिस इज टेंडिंग टू 1. दिस इज द मीनिंग ऑफ as n tends to infinity for as n tends to infinity. Now next is the asymptotic normality of MLE. A consistent estimate, a consistent solution of the likelihood equation is asymptotically normally distributed about the true value theta naught. जो कंसिस्टेंट सॉल्यूशन है लाइक्लीहुड इक्वेशन का, वो असिम्प्टोटिकली नॉर्मल है, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है अबाउट द ट्रू वैल्यू थीटा नॉट एंड असिम्प्टोटिकली नॉर्मल. तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी सोल्यूशन आ रहा है, सोल्यूशन जो भी आएगा वो थीटा कैप आएगा, वो किसको फॉलो कर रहा है? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को, और उसका मीन कितना होगा? थीटा नॉट. And the variance of the MLE is given by variance of theta cap. We have already know this is 1 upon I theta, and this is E of minus expected of minus of curly theta square log of n. If maximum likelihood estimator exists, it is the most efficient in the class of such estimators. So, अब question आ सकता है, state all the properties of MLE. So 12 properties हैं. So you will state all the properties, right? Now I'm coming to the questions. Example number 38. First of all, in the random sampling from a binomial populations, find the maximum likelihood estimator of the population mean.
हमें एमएलई ढूंढना है किसका, पॉपुलेशन मीन का। पहली बात, बाइनोमियल में पॉपुलेशन मीन कितना होता है, ठीक है, दिस इज एनपी, पॉपुलेशन मीन कितना होता है एनपी, और वेरियंस होता है एनपी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट, मैंने आपको बताया पहला स्टेप क्या होता है, सबसे पहले जो भी डिस्ट्रीब्यूशन दी है उसका प्रोबेबिलिटी फंक्शन लिख लिया। सेकेंड स्टेप होता है वी विल टेक द सैंपल्स, ठीक है, हैविंग द पैरामीटर पी। नाउ उसके बाद सारे ऑब्जर्वेशन इंडिपेंडेंट है, फिर हमने बनाया लाइक्लीहुड फंक्शन, x1 x2 का पता है, सारी जो है प्रोबेबिलिटीज जो है सारी पीडीएफ आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, सारी वैल्यूज लगा दी, सारे एनसीएक्स एक जगह हो गए, पी की पावर्स इकट्ठी हो गई, एन माइनस एक्स सारे इकट्ठे हो गए, समेशन आ गया, ठीक है जी, एज इट इज। व्हाट इज दिस, दिस इज एन एक्स बार, दिस इज, जब आप इसको समेशन करेंगे तो ये आ जाएगा, एन कांस्टेंट है तो ये आ जाएगा स्मॉल एन इनटू कैपिटल एन, उसी तरह ये आ जाएगा समेशन ऑफ, अब जब आप इसको ओपन करेंगे तो आएगा ये समेशन आई रनिंग फ्रॉम 1 to n कैपिटल एन माइनस समेशन ऑफ xi, तो ये कांस्टेंट है तो नंबर ऑफ n टाइम्स जो है वो ऐड हो रहा है और ये बन जाएगा n x बार, ठीक है। उसके बाद व्हाट इज द x बार, x बार क्या है, एक्स बार एक सैंपल मीन है, और ये कहाँ से आ रहा है, ये सारे के सारे जो डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, सारे एक्सरसाइज जो है वो प्रोबेबिलिटी वो बाइनोमियल को फॉलो कर रहे हैं, और मीन कितना है उनका, मीन है एनपी, व्हाट इज द मीन एनपी, सो दैट्स व्हाई यहाँ पे लगाया एनपी, ठीक है। और यहाँ कुछ नहीं आना बेटा, दिस इज मिस प्रिंटिंग, तो यहाँ पे एन एन एनपी, ये एज इट इज, पी रेज टू पावर एन एन स्क्वायर पी, ये n स्क्वायर है, n स्क्वायर p 1 माइनस p रेज़ टू पावर n माइनस n स्क्वायर, राइट। नाउ यू विल टेक, क्योंकि अब आपने क्या करना है, log ऑफ l बनाना है, डेरिवेटिव इक्वल टू 0 करना है, log l करेंगे, ये इसका log एज इट इज, ये बन जाएगा, ये सारे पावर्स में नीचे आ जाएंगे, n स्क्वायर p log ऑफ p प्लस n इनटू कॉमन निकाल लिया, n इनटू n माइनस यहाँ पे आएगा 2p n square p log p plus n into n minus 2p into log of 1 minus. So let me check again. N square p log of p, n is common. Sorry, 2 नहीं आएगा, n नहीं आएगा कि ये पावर में है. So this was confusing. Here आएगा n, ठीक है, log of 1 minus. Mu is the mean of the binomial distribution. Mu is equal to capital NP. So capital P is equal to mu by n. तो log को इसको अब देखा क्या किया, n square p और p की वैल्यू पुट कर दी mu by n, right? Now for MLE with respect to the population mean mu, so we have to differentiate it with respect to mu is equal to, हमने करके डेरिवेटिव इक्वल टू, डेरिवेटिव बेटा when you will solve it आपने फाइंड आउट क्या करना है, mu फाइंड आउट करना है। So जब आपकी mu की वैल्यू आएगी ना, so you will write as mu cap is equal to np, ठीक है, which is equal to sample mean. So second derivative लेंगे, second derivative that comes out to be, that is less than 0. Therefore mean x bar is the MLE of the population mean mu. Mu यहाँ पे कौन है, mu है capital for a binomial distribution. Now come to the next example. In a random sampling from normal population, find the maximum likelihood estimated for mu when sigma square is known. इसमें ये पता है मतलब ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है मतलब जब आप इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू म्यू लेंगे तो वो 0 हो जाएगा, ठीक है। दूसरे केस में ये म्यू नोन है, इसका मतलब जब आप डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू म्यू लेंगे म्यू लेंगे तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे डी म्यू कहीं भी सिग्मा स्क्वायर आएगा तो आंसर 0 हो जाएगा, ठीक है। साइमल्टेनियस जो है वो एंड में देखेंगे। सो सबसे पहला काम डिस्ट्रीब्यूशन लिखी, हर एक एक्स किसको फॉलो कर रहा है, नॉर्मल को, नॉर्मल की डिस्ट्रीब्यूशन लिखी। उसके बाद सेकंड स्टेप लाइक्लीहुड फंक्शन, लाइक्लीहुड फंक्शन कैसे लिखना है, एफ ऑफ x1 म्यू कि एक ही पैरामीटर का है बाकी कांस्टेंट है, तो सारी वैल्यूज आप पुट करेंगे, पाई या सारी वैल्यूज पुट करेंगे, ये बन जाएगा n टाइम्स, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कैसे निकलता है ये, ठीक है, समेशन आई रनिंग फ्रॉम 1 to n xi माइनस में सारा बन गया।
अब लॉग लिया, लॉग लिया, लॉग जब लेंगे जब लॉग लिया, देखो जब इसको लॉग में जब आपने कन्वर्ट किया, ये वाला हिस्सा, मैं सिर्फ इसकी बात कर रही हूँ, ठीक, ये बन गया। अब इसको थोड़ा सा ओपन करें, ये बनेगा 1/σ2 n रेज टू पावर 2, पावर 1/2 है ना ये, ठीक है जी। और देन वी हैव, ये तो एक ही पावर, ये तो एज इट इज आ जाएगी ना, -1/2 सिग्मा स्क्वायर समेशन आई रनिंग फ्रॉम 1 to n xi माइनस म्यू होल स्क्वायर, ठीक है। सो यहाँ पर अब n की पावर, पूरे की पावर 1/2 नहीं है, ये ऐसे है 1/σ रेज टू पावर n, ठीक है, इंटू 2 पाई रेज टू पावर n/2, 1/, तो 1/, है तो ये माइनस लग गया, ठीक है। n माइनस n/2 बाहर आया log 2 पाई, दूसरा -n/2 अब क्या किया, यहाँ पे इसको क्या किया, एक स्टेप आप बीच में लिखेंगे बेटा, इसके बाद ये लिखेंगे, उसके बाद ये लिखेंगे, इसको इस तरह से लिख दिया, ये, फिर उसके बाद लॉग, ठीक है। और इसको अगर आपने और इसको मॉडिफाई करना है तो आप इस तरह से इसको लिखते हैं, इनटू सिग्मा स्क्वायर रेज टू पावर माइन, अब आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। सो व्हेन यू आर टेकिंग द लॉग ऑफ दिस नंबर, दिस इज -n/2 log 2 पाई -n/2 log ऑफ सिग्मा स्क्वायर, राइट। सो ये एक हमने लॉग एन बना लिया। अब इसमें 3 केसेस हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। व्हेन सिग्मा स्क्वायर इज नो, डेरिवेटिव 0, डेरिवेटिव किसके विद रिस्पेक्ट टू म्यू, तो ये भी खत्म, ये भी खत्म, सिर्फ ये रह जाएगा, इसका डेरिवेटिव लिया, यू कैन टेक इट इजीली, दिस इज इक्वल टू 0। अब देखो जैसे ही म्यू निकाला, म्यू के साथ क्या लगा दिया, कैप लगा, म्यू किसके बराबर, म्यू कैप इज इक्वल टू x बार, देयरफॉर यू विल चेक हियर, इन्होंने चेक नहीं किया, यू विल चेक हियर कर्ली स्क्वायर log of l at mu cap is equal to x bar, this must be less than 0, ये चेक करना है आपने, therefore you can write MLE for mu is a sample mean x bar. Now the likelihood function equation for estimating sigma square is, derivative 0 किया, तो with respect to अब sigma square है, जब डेरिवेटिव सिग्मा स्क्वायर ले रहे हैं, इसका मतलब ये तो डेरिवेटिव 0 हो गया, इसका डेरिवेटिव आएगा 1/σ, ठीक है। अब ये सारा इसमें एज अ कोफिशिएंट ट्रीट होगा और इसका डेरिवेटिव आएगा, वो सारा इन्होंने सॉल्व कर दिया, दिस इज इक्वल टू 0 एंड दैट का यहाँ से किसकी वैल्यू निकालनी है, सिग्मा कैप, दिस इज। अब आप सेकंड डेरिवेटिव चेक करेंगे, कर्ली स्क्वायर बाय कर्ली सिग्मा होल स्क्वायर log of l लेस देन 0 एट सिग्मा cap square is equal to 1 by n summation I running from 1 to n xi minus mu square, this is less than 0. So now the simultaneous estimation of दोनों की इकट्ठी करनी है, दोनों की इकट्ठी का मतलब ये 0 लिया और ये 0 लिया, ठीक है। जब ये 0 करते हैं तो म्यू कैप पहले ही हम पीछे निकाल चुके हैं, comes out to be म्यू कैप is equal to x bar, ठीक है। तो अब और इसको जब सॉल्व करते हैं तो आंसर कितना आता है, सिग्मा कैप स्क्वायर समेशन आई रनिंग फ्रॉम 1 to n x माइनस म्यू। जब ये साइमल्टेनियस है तो म्यू की जगह हम क्या पुट कर देंगे, म्यू कैप, म्यू कैप की वैल्यू क्या है, x बार, एंड दिस इज व्हाट द सैंपल वेरिएंस। So therefore x bar and s square, they are the maximum likelihood, simultaneously the maximum likelihood estimator for the population mean and population variance. Here we note that expected of mu cap is equal to expected of x bar, but expected of sigma square is not equal, sigma cap square is not equal to expected of, is equal to expected of s square, which is not equal to sigma square. ये नहीं होता, क्या होता है, कैपिटल S स्क्वायर हमेशा किसके बराबर होता है, ये तभी होता है फॉर द लार्ज सैंपल,
So this shows that अब पेपर में सपोज करो क्वेश्चन आ जाए prove that the MLEs need not be unbiased, तो ये एग्जांपल देके आप लास्ट में ये शो कर सकते हैं. Therefore sigma cap square is not the, you can write here, is not the unbiased estimator of sigma square. Rather, it is the MLE. Therefore, MLE sigma cap square is not the unbiased estimator of marks. I hope the question, the logic is clear to you. So here we have given the Poisson distribution. For the Poisson distribution, we have to show that the sample mean x bar is the sufficient estimator for estimating the parameter lambda. So we have given the probability distribution. We will find out L. Then we will take the log of L. Log of L is equal to 0. Lambda comes out to be bar. So this is the maximum likelihood estimator for lambda is x bar. Now, what they are asking for? Now we have a question कि अगर sufficient estimator exist कर रहा है, we have the result. If a sufficient estimator exists, it is a function of the maximum likelihood estimator. एक तो ये है रिजल्ट हमारे पास, और so let's see what they have done. और हमें भी शो करना है दिस इज सफिशिएंट. देखो दो तरीके हैं, या तो आप सीधा इसको एक तो एमएलई फाइंड आउट कर लो, ठीक है. देखो क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द एमएलई, ढूंढ लिया. फाइंड इट्स वेरिएंस. वेरिएंस के लिए दो तरीके हैं, या तो आप मिनिमम वेरिएंस बाउंड एस्टिमेटर की तरह उसको इसी को ही अगर एक्सप्रेस कर देते हो, ठीक है, तो आपका ये मिनिमम वेरिएंस आ जाएगा. दूसरा क्या है, इन्होंने क्रैमर्स राव सीधा ये निकालने के लिए वेरिएंस के लिए डायरेक्टली फॉर्मूला यूज किया है. So you have curly square by curly lambda square. You will take the second derivative, then you will solve it. That comes out to lambda by n. एक तो ये तरीका होगा, या सीधा यहाँ से जैसे कल बताया था, इस एक्सप्रेशन को माइनस n lambda plus n x bar upon lambda. So this is minus, this is n से divide कर दो x bar माइनस लैम्डा अपॉन लैम्डा बाय n. ठीक है, तो ये किस फॉर्म में एक्सप्रेस हो गया, ये थीटा कैप माइनस क्या लिखते हैं यहाँ पे, लैम्डा थीटा, नहीं गामा थीटा अपॉन लैम्डा थीटा. यहाँ थीटा कैप क्या है, थीटा कैप एक्स बार है. गामा थीटा क्या है, गामा थीटा मतलब एक्स बार, दैट इज इक्वल टू लैम्डा. राइट, ये प्रूव हो गया यहाँ से मीन. और लैम्डा थीटा कैप कितना आ रहा है, लैम्डा बाय n, ये मिनिमम है. इसे तो डायरेक्टली आप ऐसे भी निकाल सकते हैं. तो ये देखो सेम आ गया ना. सो दैट इज द, मैंने वेरिएंस ऑफ थीटा कैप लिखा, और वेरिएंस ऑफ थीटा कैप कौन बन रहा है यहाँ पे, लैम्डा कैप, दैट इज लैम्डा बाय n. सो देयरफॉर एंड सफिशिएंसी के लिए, अब अगर वो कह रहे हैं कि अगर हम ये करली बाय करली लैम्डा लॉग ऑफ एल को एक फंक्शन ऑफ एक्स बार और लैम्डा में एक्सप्रेस कर दे ओनली, देन इट इज अ सफिशिएंट एस्टिमेटर फॉर एस्टिमेटिंग लैम्डा. सफिशिएंट एस्टिमेटर ढूंढना है. इफ यू आर एबल टू एक्सप्रेस एल likelihood function as a product of two, one having the function x and lambda and other is independent of that, then that is a sufficient estimator. So similar question exactly. p कैप निकालना है x बार बाय n. ठीक है, क्रैमर्स राव इनइक्वालिटी से इसका वेरिएंस फाइंड आउट किया है. so you can do the questions according to the theory of ML.